Uh, well, good morning to everyone who is watching, and it's quite an interesting experience for myself. I've never done a Facebook Live, so this is first time I'm doing it, uh, and thank you to being there doing that for this invitation, to Lokesh ji for asking me to speak on this topic on Uttarakhand. It's how did Uttarakhand become a state, and then since then, and how can we look forward to the future of the state and what we should be doing for a better future. So uh, I should also thank Ghanshyam for actually showing me how to work with Facebook Live. Uh, there's no Somebody said there's no voice. Is there no voice coming? Can can anybody tell me if there is voice coming or not? Please confirm. Please confirm if there is my voice is coming or not, because somebody posted that there is no voice. Uh, Lokesh, can you hear me? Can you text me on that? Can you hear me? Yeah. Okay. Thank you. So, uh, thank you, Ghanshyam, for showing me how to do Facebook Live, and although since the COVID lockdown, I've been doing a lot of instruction teaching using Zoom, because that's how most of our teaching was going on, and so that is how we were doing it. But this is a different experience, because in Zoom, obviously, you see your students as well. Uh, so what I'm going to talk about is primarily I'll start by talk about a little bit about how this state came about, and there is something very special about it, which is very different from a lot of other statehood movements in India. Uh, to and that difference is important to understand why a lot of people are dissatisfied with how the state is being run, or how the state in last 20 years, last 2 decades since the founding of the state in 2000, how it has, evolved. Uh, Not that everything has been bad, but there are certain things that people are really dissatisfied about. And one of the reasons for that dissatisfaction is primarily, let me say, lack of understanding of why the state was formed among especially the ruling class, or let's say the bureaucracy is the most important. And the politicians may most probably don't want to recall why the state was formed for some reason or the other. But 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 for the permanent bureaucracy, there is always this, that they perhaps forget that what was the motivation behind it. Uh, to so This reminds me of something that I did many years ago when I was a journalist in Dehradun, and with a few of my friends, we used to bring out a magazine, the Doon Civic Chronicle. We used to do a monthly feature in that magazine called Uttarakhand Beyond the Andolan. That means, okay, आंदोलन चल रहा है, आंदोलन तो चलेगा, और उस समय भी हम लोगों को मालूम था कि राज्य तो बनेगा ही, लेकिन जब राज्य बन जाएगा तब क्या, उसके बाद क्या करेंगे हम। और वो सीरीज ऑफ इंटरव्यूज थे, जो बहुत सारे जो लोग एनजीओ सेक्टर में थे या जो पॉलिटिकल सेक्टर में थे, जो इस बात पे विचार कर रहे थे, उनसे वो इंटरव्यू था। तो कई लोगों से हम लोगों ने इंटरव्यू किया था, और उस समय समझने के लिए। तो मेरा जो बाद में, जब मैं पीएचडी करने चला आया अमेरिका, और बाद में मैंने अपना रिसर्च भी उत्तराखंड आंदोलन पे किया, तो वो जो एक्सपीरियंस था मेरा पत्रकार का, वो जो मैंने इंटरव्यू लोगों से किया था और लोगों से बातचीत की थी, उसका एक इन्फ्लुएंस था। तो मैं फिर बाद मैंने किताब लिखी इसके ऊपर। तो इफ अगर हम इस बात को, इफ लेट्स से इफ आई गो बैक एंड से दैट व्हाट इज यूनिक about
the statehood movement of Uttarakhand? That question is very important to understand. इंडिया में 1950s में जितने स्टेट क्रिएट हुए वो सब के सब एथनोलिंग्विस्टिक, ज्यादातर एथनोलिंग्विस्टिक स्टेट्स थे. तो वो स्टेटहुड अगर आप उसको देखें तो वो आइडेंटिटी पे बेस्ड था, और आइडेंटिटी, लैंग्वेज या एथनिसिटी. कुछ ट्राइबल स्टेट्स थे, मेजॉरिटी ऑफ देम लैंग्वेज पे बने थे. उत्तराखंड एज अ स्टेट हम क्लियरली नहीं कह सकते कि ये एक एथनोलिंग्विस्टिक स्टेट है. अगर हम उत्तर प्रदेश से भाषा के कारण तो ये स्टेट क्रिएट नहीं हुआ कि भाषा अलग है इसलिए ये स्टेट अलग होनी चाहिए, क्योंकि दो प्रमुख भाषा यहाँ की गढ़वाली और कुमाऊनी, फिर वो अलग अलग स्टेट होनी चाहिए अगर इथनोलिंग्विस्टिक कैटेगरी में माना जाए तो. और अगर पहाड़ी भाषा की बात करें तो पहाड़ी तो यहाँ से लेकर हिमाचल सभी पहाड़ी हैं, भाषाएं हैं. तो भाषा के नाम पर ये राज्य नहीं बना था. ये राज्य प्राइमरली डिसेंट्रलाइजेशन और ऑटोनॉमी के नाम पर बना था, कि कैसे लोकल स्तर पर पावर का डिवोल्यूशन हो. कई मायने में ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो 71 और 72nd अमेंडमेंट जो राजीव गांधी के समय आया था, ये उसका रियलाइजेशन भी एक तरीके से आप उसको देख सकते हैं. डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर टू द लोकल लेवल. और इसका इंस्पिरेशन जो था इस मूवमेंट का, वो इंस्पिरेशन किसी पॉलिटिकल मूवमेंट से जुड़ा हुआ नहीं था. ऑल्दो प्रेसिपिटेटिंग इवेंट जिसको कहते हैं, किसी भी सोशल मूवमेंट में कोई ना कोई इवेंट होता है जिसकी वजह से सडनली आंदोलन विशाल हो जाता है. तो वो 1994 का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन एक्सटेंशन एक वजह था. लेकिन अगर आप इसको ट्रेस करें राइट बैक टू अर्ली 20th सेंचुरी, जब कॉलोनियल पीरियड में भी जब यहाँ के लोगों को लगा कि हमारी एक पहचान है, हम लोग रेस्ट ऑफ यूपी से अलग तरीके से अपना लोकल गवर्नेंस देखते हैं, तो वो भी आप देखेंगे तो वो एक जंगलात के आंदोलनों से जुड़ा हुआ था, जंगल के हक हकूक से जुड़ा हुआ था. उसके बाद 1950-60 के बाद 60 के दशक में वो आंदोलन और तेज हुआ, और वही आंदोलन अल्टीमेटली चिपको में बदल गया. इस बीच में बड़े बड़े डैम बन रहे थे, डैमों के खिलाफ आंदोलन थे. तो आप अगर उनको सबको गौर से उन सब आंदोलनों को देखेंगे तो उनके अंदर एक फैक्टर बहुत कॉमन था. वो फैक्टर था कि एक सोशियो इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव था उसके अंदर, एक सामाजिक पर्यावरण रूप का एक परिकल्पना थी. और मैंने जब सब लोगों से बातचीत करी इस दौरान, आई हैव ऑलवेज found it that how there is this common thread between everybody who was associated with the movement. वो एक इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव था, और इकोलॉजिकल एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है, एनवायरनमेंट से ज्यादा बड़ा टर्म है. इसके अंदर कल्चर भी आता है और इसके अंदर लोग भी आते हैं, खाली जानवर और प्रकृति का नहीं है की बात नहीं है. और इस सामाजिक पर्यावरणिक विचारधारा पर आधारित था वो सारे आंदोलनों के अंदर, वो आप पाएंगे. और उत्तराखंड आंदोलन के जो मेन फोर्स थे, सड़क के ऊपर जो फोर्स थे, जो परसिस्टेंट ग्रुप्स थे, जो लोग कंटिन्यूअसली एक्ट कर रहे थे उसके ऊपर सिंस 1950s ऑनवर्ड, 60s में, 60 के दशक में, 70 में, 80 में, आप देखेंगे कि वो लोग ज्यादातर एनजीओ सेक्टर से जुड़े हुए थे, सोशल मूवमेंट से जुड़े हुए थे. तो कई मायने में हम 2000 में जब राज्य बनता है, या 1994 में जब आंदोलन विशाल हो जाता है, सड़कों पे आ जाता है बहुत बड़ी स्तर पर, तो उसको एक तरीके का कल्मिनेशन मानिए आप. 1920 से जो आंदोलन शुरू हुआ है जंगलात में, जंगल के हक हकूक के लिए, कुमाऊं के ब्रिटिश गढ़वाल में और कुमाऊं में, वहां से लेकर, और टेहरी गढ़वाल में भी, क्योंकि टेहरी गढ़वाल में भी आंदोलन जंगल के हक हकूक के चलते रहे हैं, और बहुत ट्रैजिक इंसिडेंट्स भी हुए हैं, लैंडमार्क इंसिडेंट्स हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट मेमोरी के रूप में काम उन्होंने किया है पूरे उत्तराखंड आंदोलन के दौरान. तो उत्तराखंड आंदोलन, अगर हम ये मान के चलें कि एक सोशियोलॉजिकल मूवमेंट था, एक सोशियोलॉजिकल परिकल्पना थी, और साथ में डिसेंट्रलाइजेशन उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण एस्पेक्ट था कि पावर कैसे डिसेंट्रलाइज लोकल गवर्नेंस के रूप में.
तो आप देखेंगे कि उसके अंदर गांधीयन एलिमेंट भी था। और नॉट सरप्राइजिंगली कि चंदी प्रसाद भट्ट जैसे लोग और बहुगुणा जी जैसे लोग जो गांधीयन थे खुद, और बहुत सारे और भी गांधीयन लोग जो हैं वो इससे जुड़े हुए थे, इस विचारधारा को समझते थे। और ये उनका कि किस तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है राज्य बनाने की परिकल्पना में। लेकिन जब राज्य 2000 में बन गया तो उसके बाद वो जितने सोशियोलॉजिकल मूवमेंट्स थे उनकी जो परिकल्पना थी, उनके जो विचार थे, वो सब दरकिनार कर दिए गए। और उत्तराखंड राज्य जो है वो बस एक छोटा स्वरूप बन गया उत्तर प्रदेश का। देन इट बिकेम जस्ट अ पावर गेम कि कौन पावर में आएगा। और दोनों मुख्य पार्टीज, कांग्रेस और बीजेपी, उन लोगों ने इस आंदोलन को ऑप्ट तो कर ही लिया था बाय एंड ऑफ 1990s। और दोनों क्लेम कर रहे थे कि हमने ये राज्य बनाया, मतलब ये हमारा ही क्रिएशन है, हमने किया, ये राज्य बनाया है, जबकि ऐसा नहीं है। जैसे मैंने कहा कि ये राज्य तो बहुत वर्षों के संघर्ष और एक पर्यावरण और सामाजिक संघर्ष से यहाँ पहुंचा है। उस सामाजिक संघर्ष में एक भूमिका महिलाओं की भी थी, जो एक टेम्परेंस मूवमेंट, एंटी अल्कोहल मूवमेंट से शुरू होकर, जंगलात के अधिकार से शुरू होकर आपको 94 के आंदोलन तक आता है। पर ये जितने ये जो ग्रास रूट मूवमेंट जिनको हम कहते हैं, इन सारे मूवमेंट के अंदर जो लोग थे उनको दरकिनार कर दिया गया, क्योंकि ये बीजेपी और कांग्रेस ने इसको कोऑप्ट कर लिया, इस मूवमेंट को। ना इस रूप में मेरा ये मानना है कि ये एक मूवमेंट की विफलता रही। मैं कई बार इसको कंपेयर करता हूँ बहुत सारे और राज्यों के मूवमेंटों से, जहां मूवमेंट्स क्रिएट हुए और wherever it was formed. Like for example, if you look at Assam, where there was a similar youth-led movement, Assam Gun Parishad movement, although their issue was somewhat different, it was much more about immigration and other things. But when they succeeded in signing an accord with the with Delhi, they eventually came to power as Assam Gun Parishad. Although they have lost power after some time, and then BJP and Congress again came back and claimed the power in that state. यहाँ पर तो उत्तराखंड क्रांति दल हो या संयुक्त संघर्ष समिति हो या कोई भी इस तरीके की लोकल पार्टी हो, वो कभी भी इतनी शक्तिशाली नहीं रही कि वो पावर में आ सके। जो आंदोलन के जो विचार थे, ओरिजिनल विचार थे, जिसको मैं कहता हूँ सोशियोलॉजिकल हार्ट था जो उस आंदोलन का, मूवमेंट का, वो उसकी चिंता करने वाले, उसकी बातचीत करने वाले लोग जो हैं वो दरकिनार हो गए। शायद वो लोग राजनीतिज्ञ नहीं थे, वो लोग इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में नहीं पार्टिसिपेट कर सकते थे। और तो ये भी एक वजह हो सकती है कि ये पॉलिटिक्स एक स्पेशल टाइप की एक्टिविटी है, और अगर आप पार्टी पॉलिटिक्स में एंटर करें तो ही आप कर सकते हैं। लेकिन मैं कई बार सोचता हूँ कि जब मैं 1990s में, मैं और मेरे दोस्त, हम लोगों से इंटरव्यू करते थे, पूछते थे कि उत्तराखंड बियॉन्ड द आंदोलन, तो उस प्रश्न में हम पॉलिटिशियन से भी बातचीत करते थे, और वो सब इस बात को रिकॉग्नाइज करते थे कि ये आंदोलन का सोशियोलॉजिकल हार्ट है, इस आंदोलन का प्राइमरली एनवायरमेंटल इश्यूज और इकोलॉजिकल इश्यूज इंपॉर्टेंट है इस आंदोलन के लिए। और सब कहते थे कि ये जो रेटरिक है स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, ये रेटरिक नहीं, इसको रियलिटी बनाएंगे। तो जब हम इसको बोलते हैं तो ये खाली टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से नहीं है कि स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया कहने का मतलब है कि स्विट्जरलैंड एक, अगर आप गए हो, आप में से कोई भी, तो आप देखेंगे कि इट्स एन इकोलॉजिकल टेरिटरी, एक माउंटेन टेरिटरी है। उसको किस तरीके से उन लोगों ने डिसेंट्रलाइज तरीके से उसको रन किया है अपने पास। वहां पर बहुत छोटे छोटे स्तर पर उनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है। पहाड़ों में एक तरीके से वैली, मान लीजिए कि एक वैली दूसरी वैली, हर वैली का एक अपना स्ट्रक्चर है। तो उस तरीके से हम इस राज्य को देखते थे, बहुत सारे लोग उस समय देखते थे। मैं
उस समय के जितने क्रांतिकारी तरीके के लोग थे उन लोगों से मेरी बातचीत जितनी भी हुई है हमेशा ऐसा ही महसूस होता था उनकी बातचीत से कि लेकिन वो नहीं हुआ। तो अगर हम उस बात को देखें कि एक प्रश्न मुझे के पहले किसी ने लोकेश जी ने शायद एक जिक्र किया था और मेरी किताब का एक सबटाइटल भी है कि रोल ऑफ हिंदी प्रेस, कि 1990s में व्हेन दिस मूवमेंट बिकेम 1994 के बाद जब ये मूवमेंट रियली बहुत बड़े स्तर पर सड़क पे आ गया तो उसमें रोल ऑफ प्रेस एक एस्पेक्ट है जिसको मैंने स्टडी किया। ये नहीं कह सकते कि प्रेस ने उत्तराखंड बनाया, ऐसा नहीं है। प्रेस ने नहीं बनाया उत्तराखंड। मैंने कहा जैसे कि ये तो अर्ली 20th सेंचुरी से एक विचारधारा है और बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रीम्स ऑफ आइडियाज थे। उनका एक जो कनेक्टिंग थ्रेड था वो सोशियो इकोलॉजिकल था और वो इवेंचुअली मर्ज कर जाता है आकर 1990s में उत्तराखंड स्टेटहुड डिमांड के साथ। तो वो स्टेटहुड डिमांड एक तरीके से एक सिंबल बन जाता है उनके सारे एस्पिरेशंस का। तो ये जो है उसमें ये अखबारों का रोल मोबिलाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट था। अखबारों का रोल विचारों को फैलाने के लिए जरूरी था। अगर आप 1990 के अखबार पढ़ें तो आप और अमर उजाला दैनिक जागरण को पढ़ें अगर मिड 1990s में जो सबसे ज्यादा पढ़े जाते थे इस क्षेत्र में, उनको अगर आप पढ़ें तो आप देखेंगे, आप पाएंगे, यू विल बी सरप्राइज्ड कि कितना डिस्कशन उन अखबार के पन्नों पर सोशियो इकोलॉजिकल इश्यूज पर होता है। कितना आवाज उन अखबारों ने उस समय के कार्यकर्ता, एक्टिविस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट, सामाजिक कार्यकर्ताओं को उन्होंने अपने पन्नों पर जगह दी थी कंपेयर टू पॉलिटिशियंस। और बाय जैसे जैसे स्टेट बनने के निकट हम पहुंचे तब हमने नोटिस किया कि मैंने स्पेशली अपनी एनालिसिस में नोटिस किया कि जो एक्टिविस्ट थे, जो इकोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, सोशियोलॉजिकल, सोशल एक्टिविस्ट थे, उनको साइड दरकिनार करके पॉलिटिशियन छाने लग गए अखबार के पन्नों पर। नाउ उसका एक डायनेमिक्स होता है और मैं एक पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का विशेषज्ञ हूं तो मैं वो एक अलग डायनेमिक्स है। ये दिस टॉक इज नॉट अबाउट दैट, तो वो हम पे कभी उस पर चर्चा करेंगे। तो लेकिन हाँ, वो एक रोल जरूर प्ले किया उसने कोऑप्टेशन में। तो इसलिए वो जो ओरिजिनल हार्ट था मूवमेंट का उसको कैसे कोऑप्ट करके और उसको दरकिनार कर दिया गया और उत्तराखंड बन गया एक छोटा क्या कहते हैं, एक छोटा उत्तर प्रदेश के रूप में, स्वरूप के रूप में बन गया और देहरादून एक छोटा लखनऊ बन गया रातों रात। तो कोई जो एस्पिरेशन था कि एक अलग प्रकार का राज्य, वो नहीं हो पाया। और उसके साथ साथ क्या हुआ कि पिछले 20 वर्षों में अगर हम देखें तो पलायन वैसे ही चलता रहा, पहाड़ों की समस्या वैसी ही रही, देहरादून और ज्यादा पॉपुलस, दोनों में से कोई भी बेनिफिट नहीं किया। एक तरीके से देहरादून एज अ शहर भी बेनिफिट नहीं किया और नाइदर डिड द माउंटेन्स, पहाड़ के लोग भी को भी बेनिफिट नहीं हुआ। तो ये एक हाँ, जैसे अभी भूमेश जी ने कहा कि एक ये जो बड़ी पार्टियों ने है वो उन्होंने जो गेम खेला उत्तराखंड उत्तरांचल वाला, वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। वो एक तरीके से आपको बताता है कि उन लोगों को एक्चुअल सोशियो इकोलॉजिकल इश्यूज से कोई मतलब नहीं था। वो लोग ज्यादा वो दे जस्ट वांटेड पावर एंड फॉर देम अगर लखनऊ से अलग हट के पावर देहरादून में बन जाएगा तो उनके पास अपना पावर हो जाएगा। हो सकता है कोई बड़ा मुखिया एमएलए बन जाएगा, बहुत सारे एमएलए को मंत्री बनने का मौका मिल जाएगा। तो ये एक अपना सेल्फ इंटरेस्ट पार्टी के स्ट्रक्चर के अंदर, और वो दोनों पार्टियां आपस में उत्तराखंड उत्तरांचल की लड़ाई लड़ते रहे। तो ये एक अगर हम देखें कि पिछले 20 सालों में क्या हुआ, तो पिछले 20 सालों में जो चीज हम नोटिस कर रहे हैं वो यही है कि जो उसका ओरिजिनल उद्देश्य है वो दरकिनार हो गया और उसको साइड करने के बाद we have come to this realization that neither has the plains, the Dehradun, Haridwar,
से लेकर तराई उधम सिंह नगर तक, neither have plains benefited in a big way from in terms of those socio-ecological goals, and nor have the mountains. और कई मायने में गैरसैन राजधानी बनाना, गैरसैन एक सिंबल है उस सोशियोलॉजिकल आर्गुमेंट का, कि एक डिसेंट्रलाइज स्टेट का एक सिंबल है कि हाँ ठीक है, पहले भी जब लोगों ने विचार किया था कि गैरसैन राजधानी होगी तो राजधानी गैरसैन में असेंबली होगी, बाकी जो स्टेट का सेक्रेटेरिएट है वो डिसेंट्रलाइज्ड होगा, डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे होगा। आयरनी ये है कि उत्तराखंड बनने से पहले हाई स्कूल स्कूल एजुकेशन बोर्ड ऑफ एजुकेशन जो था, जो हाई सरकारी स्कूलों को जो मैनेज करते हैं, वो पौड़ी में था उसका हेडक्वार्टर। वो पूरा काम पूरे क्षेत्र के लिए बढ़िया कर सकता था, कर ही रहा था। लेकिन जब राज्य बन गया, राजधानी बन गई, तो बहुत सारे लोग यहाँ देहरादून आ गए, और या फिर नाम पर कैप हेडक्वार्टर वहीं रहा, लेकिन काम यहाँ से करने लगे देहरादून से। तो उस डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर में अब मुझे याद है कि एक चर्चा लेट 1990s में, एक चर्चा में कि हम लोग सोचते थे कि कैसे होगा, किस तरीके से राज्य का डिसेंट्रलाइजेशन होगा। तो कहा ठीक है, क्या कहते हैं, एजुकेशन का हेडक्वार्टर देहरादून में होगा, और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का टिहरी में होगा, जंगलात का चमोली में होगा। तो अलग अलग जगहों पर और या पिथौरागढ़ में होगा। तो ऐसा था कि बिकॉज टेक्नोलॉजी मेक्स इट पॉसिबल। आज तो हम देख ही रहे हैं ना, लॉकडाउन होने के बाद हम टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके आपस से बातचीत कर रहे हैं यूजिंग टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी से पॉसिबल था कि ऐसा डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बनाया जाए। किसी ने कहा कि पॉलिटिकल लीडर्स इंडिजिनस थे, लेकिन तब भी वो दे लेट अस डाउन। हाँ, बिकॉज दे मेड इट इनटू एन आइडेंटिटी बैटल मोर, जबकि मूवमेंट आइडेंटिटी का नहीं था। और पॉलिटिक्स के लिए वो वर्क करता है, इट वाज प्रीटी सक्सेसफुल। और बहुत सारे जो बीजेपी और कांग्रेस के नेता थे, वो लोग दे वर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विद दो सोशियोलॉजिकल मूवमेंट्स। आप अगर 1990s के आंदोलन के दौरान सड़कों पे बैठे महिलाएं और यूथ विमेन उन सबको देखें, दे वर नॉट फ्रॉम द पार्टी, द बीजेपी और द कांग्रेस, दे वर जस्ट ऑर्डिनरी पीपल। कई मायने में तो इट वाज टू आइडियलिस्टिक एट दैट टाइम। हम लोग, मैं उसको ऑब्जर्व करता था, मैं कहता था कि ये सच में अगर ये ही लोग ये इस तरीके से आंदोलन चले और राज्य बन जाए, और इन लोगों के हाथ में पावर हो, तो ऑब्वियसली एक बहुत ही एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं हम पूरे कंट्री के लिए। लेकिन वो नहीं हुआ। सो 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 इफ वी वांट टू टेक इट लिटिल बिट फर्दर कि अब आगे क्या, तो क्या हो सकता है इसका, दो चीज बहुत महत्वपूर्ण है। एक कि जो एजुकेशन में इस मूवमेंट का जो असली स्वरूप है, इसके बारे में बताना बहुत जरूरी है लोगों को। और इस उद्देश्य में ये बीन दैट डून दैट ने जो लोकेश जी ने ऑर्गेनाइज किया, ये बहुत ये एक छोटा सा प्रयास है उस रूप में, कि कैसे इसका एक सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को रिकवर किया जा सके, खाली इतिहास के पन्नों में ही न रह जाए। मतलब चिपको के बारे में हम खाली इतिहास में न पढ़ें, टहरी आंदोलन के बारे में, टहरी के डैम के खिलाफ के आंदोलन के बारे में हम खाली इतिहास में न पढ़ें, लेकिन उससे समझें कि वो लोग क्या सोच रहे थे उस दौरान। अब एक सरगम मेहरा जी ने पूछा है कि इंस्टेबिलिटी के बारे में, कि पॉलिटिकल पार्टीज इंस्टेबिलिटी क्यों है, चीफ मिनिस्टर्स बहुत सारे बदले गए। दैट इज मैंने उस पर ज़्यादा विचार नहीं किया है, लेकिन अगर आप मतलब इमीडिएटली मेरे दिमाग में ये जवाब आता है कि ये तो नेचर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज का अपना पावर, इंटरनल पावर स्ट्रगल है। दे वर नॉट रियली कनेक्टेड विद द एक्चुअल मूवमेंट गोल्स एनीवे। This is just a pure, and that's what it tells us, that it's an internal power struggle of the parties. I मैं उत्तराखंड आंदोलन के दौरान मैंने बहुत रिसर्च किया है। मैंने करंट चीफ मिनिस्टर आज उत्तराखंड के जो हैं बहुत यंग रहे होंगे उस समय, लेकिन लीड एक्टिविस्ट के रूप में तो मुझे याद नहीं है।
लेकिन तो इन लोगों को कई मायने में आज का जो क्रॉप ऑफ लीडरशिप है, उनका अपना लेजिटिमेसी है, वो इलेक्ट होके आते हैं, उनका अपना लेजिटिमेसी, उनके भी अपने विजन है, लेकिन उनको भी बहुत जरूरी है ये पढ़ना कि ये आंदोलन क्यों हुआ, और इस आंदोलन के रूट्स कहाँ तक जाते हैं और कैसे ये बहुत सारी विचारधाराओं से मिलके बना है। खाली एक सिंपलिस्टिक एस्पिरेशन की नहीं, ये तो बस यूपी से अलग होना चाहता था और यूपी से अलग यहाँ एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी जिसको कहते हैं, पॉलिटिकल इकोनॉमिक आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहता था अपने लिए सेपरेट। वो सही नहीं होगा, क्योंकि आप फिर उसके हार्ट को नहीं समझेंगे क्या आंदोलन और जो समस्याएं हैं वो समस्या इसीलिए है, प्राइमरली पलायन की जैसी समस्या है। तो अगर हम आगे इसको देखें कि आगे क्या कर सकते हैं, हमारा क्या गोल होना चाहिए, किस तरीके से, एक तो हम लोगों का गोल जरूर होना चाहिए कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट। सो स्टेट का जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्वरूप है उसका डिसेंट्रलाइजेशन बहुत जरूरी है। खाली सिंबॉलिकली जैसे गैरसैंण में राजधानी बनाई गई है, असेंबली बनाई गई है, उसमें रेगुलर सेशंस हो ना। अगर आप कहें कि रेगुलर सेशंस होने का क्या फायदा है वहां पर, देखिए इमेजिन कीजिए कि 70 एमएलए जगह जगह से और जितने अधिकारी हैं, इनको इनको जब वहां ट्रैवल करना पड़ेगा, वहां जाना पड़ेगा, वो पहाड़ से गुजर कर 100 किलोमीटर ट्रैवल करके अंदर जाना पड़ेगा, वो दे विल सी द एक्चुअल उत्तराखंड। और अगर वो वहां रहेंगे तो सुविधाएं भी लोगों को मुहैया उपलब्ध होंगी, और डिसेंट्रलाइज तरीके से। कहीं भी ये नहीं कि ओवर पॉपुलेशन हो जाए, सडनली कोई पूरी वैली को खत्म ही कर दिया जाए, जैसे कि श्रीनगर का हो रहा है। मतलब कि हम क्या करते हैं कि किसी एक जगह को पकड़ लेते हैं और फिर उसमें सब लोग भीड़ की तरह उसी जगह पर जुटने लगते हैं, और फिर वो जगह भी खराब होने लगती है। श्रीनगर में ये सिचुएशन हो गया। श्रीनगर इज नाउ ओवर पॉपुलेटेड एज अ वैली जहां यूनिवर्सिटी है। तो वैसी स्थिति भी ना करें। तो एक कैरिंग कैपेसिटी होती है हर एक पहाड़ का। डिसेंट्रलाइजेशन स्वरूप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है समझना कि हर एक छोटा यूनिट है, उसका एक कैरिंग कैपेसिटी है, इकोलॉजिकल कैरिंग कैपेसिटी है। उस कैपेसिटी के हिसाब से वहां पर व्यवस्था होनी चाहिए, उस हिसाब से वहां पर डेवलपमेंट होना चाहिए। मतलब कि डेवलपमेंट अपने आप में ये नहीं कि ओवर डेवलपमेंट हो जाए, जिसको कहते हैं एक अंडर डेवलपमेंट भी प्रॉब्लम है, लेकिन ओवर डेवलपमेंट भी प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब आप खूब सारी इमारतें बना दें, इतनी लोग रहने लग जाएं, इतनी गाड़ियां हो जाएं कि सड़क पे जगह ना हो, तो वो भी एक समस्या है। तो इस डिसेंट्रलाइजेशन इज नॉट जस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉपुलेशन, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ कल्चर। दैट मीन्स हर उत्तराखंड की एक बड़ी एक अच्छी खासियत है कि सभी पहाड़ों की होती है, हर घाटी का अपना कल्चर है और उसका एक अपना महत्व है घाटी में। तो कैसे वो सारा कल्चर सरवाइव करे, वो भी डिसेंट्रलाइजेशन का ही हिस्सा है कि कैसे कल्चर डिसेंट्रलाइज हो। ये नहीं हो कि एक मेन स्ट्रीमिंग ऑफ कल्चर हो जाए, जो देहरादून आके हो जाता है। देहरादून इज अ प्लेस ऑफ मेन स्ट्रीमिंग ऑफ कल्चर। तो उस रूप में अगर हम उसको देखेंगे तो मुझे लगता है कि अगर की आइटम हम आगे क्या होना चाहिए, मेन चीज उसका सोशियोलॉजिकल आर्गुमेंट जो कोर है उसको समझें, और सस्टेनेबिलिटी कैसे उसका सेंट्रल पार्ट था, डिसेंट्रलाइजेशन कैसे उसका सेंट्रल पार्ट था, और कैसे आज भी अभी भी देर नहीं है, अभी भी उत्तराखंड एक राज्य के रूप में ऐसा उभर सकता है जो कि ये दिखा सकता है बाकी देश को कि डिसेंट्रलाइजेशन कैन वर्क एंड इज सस्टेनेबल। क्योंकि सेंट्रलाइजेशन मीन्स ओवरक्राउडिंग, ओवरक्राउडिंग मीन्स अनसस्टेनेबल। देहरादून ओवरक्राउड हो चुका है, और बहुत सारे तराई के जितने हरिद्वार, ऋषिकेश आप देखिए, इन सबको रामपुर, रामनगर, और आप उधम सिंह नगर तक चले जाइए, आप देखिएगा कि ओवरक्राउडिंग हो गई। रुड़की एक समय में एक बहुत ही आइडियलिक टाउन होता था, आजकल उसको पार करना मुश्किल हो जाता है ड्राइव करके उस शहर से, इतना ओवरक्राउडिंग। क्योंकि हर एक आदमी, और हम इंडिविजुअल लोगों को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, लोग तो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है ऊपर पहाड़ में या कहीं कस्बों में अपने, और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है उनके लिए।
और इसलिए उनको तो आना ही पड़ेगा, उनको अपने बीमारी के लिए, एजुकेशन के लिए, नौकरी के लिए। अम, लोकेश जी कहते हैं क्या कोई पॉलिटिशियन सुन रहा है? अब पता नहीं पॉलिटिशियन सुन रहे हैं कि नहीं, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको पॉलिटिशियन सुनते हैं। जैसे कुछ लोग हैं जिनकी जिनकी पहुंच है पॉलिटिशियंस तक एटलीस्ट, जो और जो इस तरीके से सोचते हैं, तो वो एक तरीका होता है वहां तक बात पहुंचाने का। देहरादून में ऐसे लोग जो कंटिन्यूअसली सस्टेनेबिलिटी, इकोलॉजिकल वायबिलिटी के बारे में सोचने वाले लोग हैं। मैं बहुत समय से फेसबुक पर अनूप नौटियाल हैं, बसंत विहार में रहते हैं, उनको फॉलो करता हूँ। ऐसे कई लोग हैं, लोकेश जी हैं, ये लोग हैं। इन लोगों को, ये लोग अगर कुछ बोलते हैं तो लोग कम से कम वहाँ लिखते भी हैं ये लोग कंटिन्यूअसली। तो दैट्स द वे, टू, बट एवरी टाइम हाउ डू यू मेक दैट पॉइंट क्लियर दैट ये जो उसका सोशियोलॉजिकल गोल है वो कैसे जो जो मेन कोर था उसको उसको बिना नज़र में रखे हुए आप सस्टेनेबल उत्तराखंड नहीं क्रिएट कर पाएंगे। और इमेजिन वो जो गांव के लोग थे, जिन लोगों ने वो चिपको किया और जिन लोगों ने वो टेहरी दान गेम के खिलाफ आंदोलन किया, ये नहीं कि वो प्रगति के खिलाफ थे, वो एक सस्टेनेबल इकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग थी उनकी दुनिया की। और उनको समझ में आ रहा था, लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, हम लोगों को समझ में शायद नहीं आ रहा है। तो ये इट्स सरप्राइजिंग एक्चुअली। विनीता काला जी कह रही हैं कि आई होप वी आर एबल टू सेव द कल्चर। हाँ, वो भी डिसेंट्रलाइजेशन का ही हिस्सा है। मैंने जैसे कहा कि हर घाटी का अपनी अपनी संस्कृति है पहाड़ों में, और हर छोटे छोटे कस्बों में। ये हमारे प्लूरलिज्म का मेन आइडेंटिटी यही है इंडिया की। खाली उत्तराखंड नहीं है, तो पूरे हिंदुस्तान की भी आइडेंटिटी का हिस्सा है। बट यहाँ पर ये आप देखते हैं एक बहुत ही, इट्स वेरी ऑब्वियस व्हेन यू ट्रैवल फ्रॉम वन वैली टू द अदर। और वो डिसेंट्रलाइजेशन से ही सरवाइव करता है कि कैसे कल्चरल, एक हम डॉक्टर D.R. पुरोहित हैं, उन्होंने एक बार एक कल्चरल मैप बनाया था उत्तराखंड का, कि कैसे उत्तराखंड में इतनी सारे डायलेक्ट्स हैं, इतनी सारी घाटियां हैं, हर घाटी की अपनी संस्कृति है। I don't know if Ministry of Culture of Uttarakhand even cares for that, but कि कैसे, so so that could be one way of so my uh, what should we do? What should we as and what is this group is doing a great job in terms of it. There are a lot of people who are raise very important issues, publicize important issues. There is obviously there is a lot of fascination for history and past here, but beyond that, uh, you know, if we talk more about it, if we spread the ideas more about it, what do we mean by this? What was the dream of Uttarakhand to be? That would help. नितिन शाह ने प्रश्न पूछा कि हाउ टू रिहेबिलिटेट घोस्ट टाउन्स। ये एक बहुत ही मैं फेसबुक फीड में मैं कई बार देखता हूँ, लोग शेयर करते हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं पहाड़ में भी रहते हैं, कुछ लोग काम करते हैं, वो लोग करते हैं, गांव खाली हो रहे हैं, फोटो देखता हूँ, गांव में कोई नहीं है, और खेती नहीं होती है कई गाँव में अब। तो जब वो देखता हूँ, मैं सोचता हूँ कि लोग हमेशा पूछते हैं कैसे ये दोबारा से इसको बसाया जा सकता है। इसको बसाने का एक रूप तो ये है कि लोग वापस जाएं, जो जा सकते हैं वो जाएं। सबसे पहला ग्रुप जो जा सकता है, आज मैं, ये बहुत लोगों को ये बात पसंद नहीं आएगी, मेरा कहना है कि जो रिटायर होता है आदमी, सरकारी कर्मचारी है, रिटायर होके अपने गांव में क्यों नहीं जाके बसता? अगर वो अपने गांव में जाके बसेगा तो सुविधाएं भी वहां तक, गांव तक पहुंचेंगी। आजकल लोग 60 की उम्र में रिटायर होते हैं, जीन लाइफ स्पैन हम लोगों का 75 से 80 है। अगर आप 60, जब आप मोबाइल हैं उस फेज में, जब आप वहां जाके सेटल हो जाएंगे अपने गांव में, अपने पुराने घर में रहेंगे, अपने गांव को दोबारा से बसाएंगे, तो सुविधाएं भी पहुंचेंगी अपने, क्योंकि आपके पास क्षमता है पेमेंट करने की, क्योंकि आप रिटायर, आपने इतने साल नौकरी करी है, आपके पास क्षमता है। तो एक तरीका तो वो हो सकता है।
कि हम अगर आप वापस गांव जा सकते हैं तो हमें जाना चाहिए। दूसरा है कि सब लोग नहीं जा सकते। मैं जैसे यहाँ पढ़ाता हूँ, मैं ये छोड़ दूं, जब जब मैं रिटायर हो जाऊं तो मुझे जाना चाहिए, ये मुझ पर भी लागू होगा। और ये बात मुझे मैंने बहुत लोगों को देखा है, लोग रिटायर होकर अपने गांव चले जाते हैं रहने के लिए। और बहुत लोग मैं देहरादून में जानता हूँ जिन्होंने अपने गांव में जाकर अपने मकान को रिपेयर किया है और अब जाके 3-3 महीना रहते हैं वहाँ, 4-4 5-5 महीना रहते हैं। वो दैट कुड हैव बीन वन वे ऑफ रिवाइविंग द विलेजेस, बिकॉज उससे कॉन्फिडेंस मिलता है वहाँ के लोगों को कि नहीं, यहाँ रहा जा सकता है। और वो रहेंगे तो डॉक्टर भी रहेंगे, भी अपने क्लिनिक खोलेंगे, बाकी लोग भी पहुंचेंगे, सुविधाएं भी पहुंचेंगी। मैं एक एग्जांपल, लोग कई बार मुझे याद आता है ये, और ये चर्चा मेरी हरीश चंदोला जी से बहुत सा वर्ष पहले। हरीश चंदोला एक बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं। तो वो जब जोशीमठ में उन्होंने अपना मकान बना लिया था रिटायरमेंट आने के करीब, जब रिटायर तो नहीं हुए थे लेकिन रिटायरमेंट के नियत थे, वहां जाके बस गए, वो वहीं रहते थे। वहां उन्होंने कहा टेक्नोलॉजी है, आज तो ईमेल से हम स्टोरी भेजते हैं, तो वो रिपोर्टिंग का अपना काम भी करते थे, लिखने का काम भी करते थे, ईमेल से सब जगह भेजते थे, और वो रहते वहां थे। उनके पहुंचने से उसके आसपास के इलाके के गांव के एरिया में एक कॉन्फिडेंस जनरेट हो गया कि ये आदमी जो दिल्ली में, साउथ दिल्ली में भी रह सकता है, वो यहाँ रह रहा है। हाँ ठीक है, उनको 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 कहीं दिल्ली में नौकरी की जरूरत नहीं थी, वो वहां रहकर जोशीमठ से कर सकते थे काम। तो इस प्रकार से जब तक मूवमेंट नहीं होगा डिसेंट डिफरेंट डिफरेंट जगहों में, तो गांव का रिवाइवल नहीं होगा। गांव का घोस्ट टाउन से बचाना मुश्किल होगा। यस, भूमेश जी कह रहे हैं कि आज कोरोना की वजह से बहुत सारे यूथ वापस आए हैं। हाँ, ये एक अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी को उत्तराखंड सरकार समझ सकती है कि ये जो यूथ वापस आया है, ये खाली यूथ नहीं है केवल, वो अपने साथ टैलेंट भी लाया है, जो जो वो टैलेंट अपना वहां इस्तेमाल करता था। कैसे सरकार इनकी मदद कर सकती है, इन यूथ को यहाँ सेटल करने के लिए, कैसे इनके लिए रोजगार का उपलब्धि हो सकती है पहाड़ में। क्योंकि आज उनको भी महसूस हो रहा है कि एट द एंड ऑफ द टाइम, जब लाइफ में रियल टाइम आता है क्राइसिस का, तो आप अपने परिवार, अपने गांव, अपनी जगह रहना चाहते हैं। तो इट्स एन अपॉर्चुनिटी। एंड दैट अपॉर्चुनिटी द गवर्नमेंट कैन यूज। सम स्टेट्स आर डूइंग इट। मैंने अभी उत्तराखंड के से तो नहीं देखा है, सुना है कोई समाचार, हो सकता है कर रहे हो। जैसे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और बिहार में, स्टेट्स, झारखंड में, इन सब स्टेट्स में कुछ गवर्नमेंट सोच रही है कि अब ये जो हमारे वर्कर्स हैं जो बड़े शहरों से वापस आ रहे हैं, इनमें से कैसे ये हो सकता है कि कुछ लोग यहीं रह जाएं। मतलब कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन की कोई पॉलिसी ऐसी हो कि यहाँ पर नए इंडस्ट्रीज लगे और जिससे कि इनको यहीं काम मिले। कैसे इन लोगों को मनरेगा के थ्रू कुछ प्रोडक्टिव वर्क में लगाया जा सके इस बीच में। तो ऐसा कुछ गवर्नमेंट सोच रही है, हो सकता है उत्तराखंड सरकार भी सोच रही होगी। लेकिन उसको इसका एक लॉन्ग टर्म विजन भी होना चाहिए, खाली शॉर्ट टर्म नहीं हो सकता है कि आज मनरेगा से इन लोगों को कुछ उपलब्ध करा दिया जाए रोजगार, लेकिन फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल कोई विजन ना हो। So that's really an interesting opportunity. So yes, this, like any crisis, every crisis is also an opportunity, not in a negative sense, but this is an opportunity for Uttarakhand government. It is opportunity for most governments that have seen migration, जहाँ पर local opportunities नहीं है और लोग दूर दूर तक जाते हैं नौकरी की तलाश में। Sargam is talking about community media. I think community media, especially जो community radio है और community media के other sources हैं, they can be really very because apolitical होकर आप इन issues की चर्चा कर सकते हैं। ये कोई पार्टी का इशू नहीं है, और it's possible to do it on through community media to spread awareness, spread opportunities कि लोग किस तरीके से व्यवसाय, रोजगार कर सकते हैं अपनी अपनी जगहों पर।
अपने गाँव के पास कैसे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सकते हैं। अगेन इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई एक जगह को डेंस नहीं करना है। डिसेंट्रलाइजेशन का सबसे बड़ा कोर आइडिया ये रहना चाहिए कि ये नहीं कि पता चला कि श्रीनगर डेंस हो गया और गोपेश्वर ओवर पॉपुलेटेड हो गया। दैट्स नॉट द रियली द सोल्यूशन। इट हैज टू बी स्टिल वेरी डिसेंट्रलाइज्ड इन मेनी डिफरेंट वे। आत्मनिर्भर भारत अभियान, मैंने डिटेल्स तो थोड़े बहुत देखे हैं, केवल भाषण सुना था मैंने मोदी जी का, और निर्मला सीतारमन का भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस पार्ट ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने आज सुबह जल्दी उठा था इसकी इस फेसबुक लाइव के लिए, तो मैंने थोड़ा सा लाइव देखा। उससे पहले मैंने कल देखा था थोड़ा। तो इट्स स्टिल एन it's an idea. Atmanirbhar Bharat Abhiyan. It can be Atmanirbhar Uttarakhand. It has to be decentralized, right? So Atmanirbhar Bharat तभी होगा जब Atmanirbhar Uttarakhand होगा. So it has to be thought in that sense. Atmanirbhar बिहार होगा, यूपी होगा, झारखंड होगा, तेलंगाना होगा. तो ये it has to be at that level, ये decentralized तरीके से हर एक स्टेट को, प्राइम मिनिस्टर ने जो बोला है, लेकिन एवरी स्टेट विल हैव टू कम अप इट्स ओन वर्जन ऑफ आत्मनिर्भर। मैंने अभी देखा नहीं है, हो सकता है हमारे मुख्यमंत्री उत्तराखंड के रावत जी मे भी वो भी सोच रहे होंगे कुछ अनाउंस करने के लिए, आत्मनिर्भर उत्तराखंड कैसे बनाया जाए। तो that could be one way of looking it, because the prime minister's job was to give the vision. He gave the vision, so rest of the people can it can only become a reality if it is realized in a decentralized manner at a very local level. Atmanirbhar Uttarakhand, Atmanirbhar Dehradun, Atmanirbhar Pauri, Atmanirbhar Nainital, it has to be like that. दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। मेहुल राठी कह रहे हैं कि डेमोग्राफिक डिवाइड जो हो रहा है, जो ओवर पॉपुलेशन, आज भी आप देखें तो उत्तराखंड की बहुत बड़ी आबादी अब तेराई में के शहरों में रहती है। उधम सिंह नगर हो गया, हरिद्वार, देहरादून। तो इसका फियर तो है कि पॉलिटिकल पावर शिफ्ट कर सकता है प्लेन्स की तरफ, और दैट कैन इन सम सेंस ऑल्सो, मतलब ये मैं इसको इस तरीके से देखूंगा कि हो सकता है कि लोग जो इश्यूज पहाड़ के हैं वो सेम इश्यूज मैदान के नहीं है, अगर नॉर्मली अगर माइक्रो लेवल पर, बट आइडिया के लेवल पर, एक लार्जर प्रिंसिपल के लेवल पे सेम। सोशियो इकोलॉजिकल कंसर्न पहाड़ का भी है और सोशियो इकोलॉजिकल कंसर्न देहरादून का भी है और हरिद्वार का भी है। सो इट इज ऑल, अगर हम थीमेटिक लेवल पे तो सेम ही है, लेकिन नॉर्मल माइक्रो डिटेल्स उसके अलग हैं। I hope that doesn't happen. Voices of the people in the mountain districts are always heard. I hope that doesn't happen. And one way it cannot happen if there is reverse migration, if people go back, because at the end, real voices will be shut down if there is this whole migration leads to delimitation of constituencies, and more constituencies eventually come down in the plains. This is the political side of it. In the plains, then obviously power will also shift to the plains. It's already almost 50-50 at this moment. So सुनीता रेखी जी कह रही हैं कि every citizen, every family has to be Atmanirbhar first. Yes, that's the idea of Atmanirbhar Bharat. Eventually has to come down to that level. Every citizen has to be. But how do we come down from the national level, when every state to every region, every region to every district to every village to every family? That's the structure about it. विनीता काला जी कह रही हैं कि अपार्ट फ्रॉम टूरिज्म व्हाट अदर एम्प्लॉयमेंट
uh, can be there in our state. Uh, I'm not an economist, but I think there are all kinds of opportunities. People need services. Today's modern economy, bulk of the employment comes from the service industry. Services in terms of education, health, banking, finance, all these kinds of services, they employ most people. And service contributes largest in the GDP of India's economy, and so that's the sector to explore. And Uttarakhand, that reminds me, back in 1990s when we used to have this discussion about what will happen after the state is formed, and I used to talk to people, we used to come to this, that yes, service industry is going to be the biggest um, employment sector. And we are ready for it because we are a highly literate state, a region. Even at that time, we had 80% literacy. I guess today we are almost on 100% literacy, close to 100, if not 100. So we were literate state. We had good educational institutions. We could have leveraged that. Uttarakhand could have become an IT powerhouse. It was possible. But all the attempts that were made in the beginning, when the state was formed, it's sad, but my analysis of documents, when I was looking at them in the early phase, the first 5 years of the state formation, when the IT policy was being formed and other things were being formed, it was not so much about long-term sustainable vision in it. It was primarily, there are these hundreds of crores that we have got from Planning Commission. How are we going to just spend it and everybody gets their cut in the process? That's how it was working at that time. It's unfortunate, but that's the reality. I'm not taking anybody's name, any particular person's name. But you go and look, there are documents available for it. You go and look, people have written, some IAS officers have written books on describing the early phase of forming Uttarakhand, and you scrutinize that, and you will find it was just about spending money. And it wasn't visionary at all. Nita Gala says that plain has already overpowered hill region. Yeah, that may be true. Although in terms of just assembly seats, it's pretty balanced at this moment. And when we say plains, it's people from hill who live in the plains still have a lot of voice, and they can represent the voice of the hill as voters in Dehradun or voters in Hardwar. Sunita Rekhi says that good roads is the need of the hour. Yeah, communication, all kinds of communication, roads, IT, all kinds of modern communication has made it possible that we can really run a very good decentralized infrastructure, decentralized administrative state, decentralized educational, economic opportunities, because these technologies exist. Roads is one of them. But IT and other technologies are there. Communication technologies are there. We are seeing the possibility of communication technology during this lockdown. What people can do, how many people are working from home. When I used to see these slogans that every school student, high school student will be provided a laptop, or subsidy for a laptop, girls student would be provided laptop. Today we realize that what could that have meant if everybody had that. One of the limitations during lockdown for education in Uttarakhand that some of the people who are teachers in the school system told me was that their students don't have laptops at home or computers at home. The only way they access internet is through their parents' smartphones. But smartphones is not the best way to impart education. You need a proper screen, a proper computer at home. Now, this is where maybe the Uttarakhand government could think about that, why every student, at least after grade 8 onwards, should have opportunity to buy a desktop or a laptop at home. It should become part of an essential equipment that everybody has. How can government provide subsidy or support to help students get that, or loans to their parents so that they can buy that?
Yeah, I've seen the CM's Hope website, and it's a very feel good thing. And so uh, I would like a little bit more content in it in terms of concrete action. Uh, Take pride in our heritage, handicrafts, agricultural produce. Yeah, that is another one. We don't only take pride, we also use them, and if we use them, then there is an economy, and then there are jobs. Using our handicraft, using our for heritage tourism is a very something which Lokesh ji has been working for such a has been working very hard on it. And some of people, somebody told me, when I was talking about Lokesh's all the work that his group is doing, somebody said, but don't doesn't Uttarakhand want tourists from outside Uttarakhand? I said, unless local people themselves don't travel to the regions, it cannot be made sustainable. Heritage tourism cannot be made sustainable by just having tourists coming from rest of the country or world. It will be sustainable if the people from Dehradun want to visit a heritage site in Pauri. A Pauri person wants to visit a heritage site in Pithoragarh. That's how things become sustainable. And there is that reminds me of one more thing, that during the Uttarakhand movement, or even before that, 80s and 70s and 80s, some of the early people who were writing about Uttarakhand in their write-ups, a lot of them were travelers. A lot of them were local people who liked to travel. They were hikers. They would hike in mountains. They would go from one village to another village and then decide, okay, we need to write something about this village. And they would write stories about them. They would write about the culture. And then somewhere in the subtext, you will also see that they had a vision for Uttarakhand as well. They thought about that. So that's possible. So that all these are part of the opportunities. The culture can itself be an employment generator. Heritage can itself be an employment generator. If an economic activity is around, that's what I meant by the service industry. Service industry is going to be the biggest employer, and because it has maximum potential of trade, this intangible trade, not trade in tangible commodities, but intangible commodities. Sana Mehra is asking about Purvanchal movement for the division of Uttar Pradesh. Well, that or any division of Uttar Pradesh, if it's based on the principle of decentralization, local autonomy, it's good. But if it's just based on accentuating another ethno-linguistic competitive politics, then it's not good. Yeah, that IT park in Dehradun, because it doesn't have a vision. You can't. It's not about park. See, nowhere. It's not about park. It's about creating opportunities for people to create businesses from wherever. They won't be creating it in the park. That's the problem. It's again centralization. So here, what has happened? You want to do IT, but you want to centralize IT as well. That was the problem with it. And there was a friend of ours when I was in Dehradun in late 90s in 2000. Amit Sharma, he was a friend of ours. He was an IT guy who had an engineering degree, come back to Dehradun, wanted to develop a business in IT. And he went through so much problem just by the state government, the way they wanted everything centralized. They would set up some facility, and it was all very bureaucratic in nature. And I don't suspect that might be happening even now. Health sector, there is another question about the health sector. Yes, that's also an educational opportunity. In health sector, there is an employment opportunity there, but in addition to providing good health, again, if people move back in villages and other places, small towns, they start living there, then government will have to provide, and not only government, the private sector will provide as well health opportunities at a small scale level, because if you scale up, then you need more profits and you need larger economic operation. It becomes unsustainable. But if you operate at a smaller level, it's possible. And so again, there also it's decentralization. How do you ensure decentralized health system? How is it possible? So let me give you an example, and I always wonder whether this is possible in Dehradun and Uttarakhand or not.
I live in Cleveland, Ohio. Cleveland has one of the best hospitals in the world. It's called Cleveland Clinic. It's consistently ranked in the top 5 hospitals in the world. And Cleveland Clinic is a big hospital setup in the heart of the city, but then it is also has a decentralized clinic system which is spread across the entire northeastern Ohio. Small setups, very, very small setups. And they refer patients back to this if they need to be referred to the big hospital, if they can be handled at the small level. So when, let's say, Rishikesh has this AIMS which was created, or private sector has created these big hospitals in Dehradun, how do they create their own branches in different parts in the state, in small towns, smaller clinics? From where, if a patient needs to be referred to a bit much sophisticated high-tech facility, they're referred to Dehradun or to some place. Otherwise, much of them can be treated, given quality care over there itself. And with um, uh, the um, the new public health insurance scheme that the government has for um, it is viable now to start this kind of thing. So I think we are almost about an hour. So I would I would say that thank you all for listening to me. And if there is, I can take a couple of more questions. There is. There is one about roads connecting pilgrim destinations. Now, I have little complicated relationship with roads. In my view, where roads are needed and where they are not. I think I'm in some agreement with Lokesh's view also on this, that whatever the way I understand it is primarily that you need, yes, good roads, big major roads, but you don't need roads right up to most of the pilgrim destinations. You need to create a better hiking tracks. Those create opportunities for other people, and it also keeps environment sustainable. You don't need to drive to Kedarnath. That's not important. It is part of the whole process of walking to Kedarnath. You don't need to drive to Hemkund. That walk part of that hiking part is part of the experience as well. So we need roads. We need major roads connecting major towns, but we don't need roads to ride to every destination, every small, every pilgrim destination. Some of them just need to be left as hiking tracks. You can provide better facilities on those hiking tracks. You can stabilize those hiking tracks. And a lot of countries have done that. And you can see examples. Japan is very good at that. Wherever they have pilgrim centers, they have created a lot of hiking tracks and they have maintained it very well. But you don't drive to the destinations all the way, especially those that are in forest on hilltops and other places. So, for example, in Uttarakhand, there's a beautiful valley called Urgam before Joshimath. On the left side of Alaknanda. It's known for apples and walnut. And enter that valley. That valley will remain pristine only as long as it can be reached through hiking. If it can be motorable, people will start driving to that. Then it won't remain the same valley that we're talking about. So roads are important, but there is some places we need just hiking. We need to walk a little bit more. Walking is good for health as well. So we should encourage that part as well. We don't want road to every destination. And cultural. There's something about teaching. I'm myself a teacher, so I'll say yes. Teaching is much more. We have the talent. It's not about the talent. It's only about how do we lay down the guidelines? How do we lay down our goals that every teacher understands? How do we encourage good teachers? That's what it becomes, because there is a very good talent of teaching anyway. As far as pluralism is concerned, yes, as I said, we have to not think about Uttarakhand as an ethno-linguistic state. It was never a movement about ethno-linguistic state. It is not an ethnic state. It is really a very good microcosm of much of North India. And everybody contributed in the movement of creation of this state.
So it is a pluralistic state, and it has to think itself in pluralistic terms. Broad pluralism in terms of Kumaon Garhwal, but there are lots of smaller tribes like Jaunsar Bauer, and there is a very energetic, very productive, very creative Punjabi population. There is the population from rest of UP. Now there is a decent population from Bihar. I'm originally from Bihar. So there are lots of people. So it's a plural state. We have to think in that term as well. Yeah. So that's it, and we've almost gone for 1 hour, and so I will take your leave. Thank you again, Lokesh and Ghanshyam, for this opportunity, and I hope to see more of these Facebook lives. I've watched the previous ones, and so thank you. Thank you. And I'll surely follow the comments later, people who are writing comments, and we will take that into consideration. And maybe, because of lockdown, usually every summer I'm in Dehradun, but this summer I won't be there because of this lockdown. International travel is generally not advisable. So, thank you.